वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम ADIG साहब के साथ बात कर रहे थे ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये भी बताया था कि हमारे साथ शो में अभी मौजूद होंगी सायरा हबीब, जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, एंड आई मस्ट से दैट शी इज अ गॉर्जियस लुकिंग लेडी। हेलो सायरा, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई शो टुडे एंड यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड स्टार्ट ऑफ विद कि ये आपका जोड़ा मुझे बहुत पसंद आया। Where did you get it from? Well, I designed it myself. You did. It's looking very nice, and I love the tassels. Actually, can I see them, please? Yeah. Very nice, and with the nice kind of different sleeves and stuff. Good. आप कपड़ों के साथ-साथ, नहीं ज्वेलरी के साथ-साथ कपड़े भी बहुत अच्छे डिजाइन कर लेते हैं. I should say that. हाँ, but it's not my profession. कपड़ों का तो मुझे हमेशा से शौक है. I'm into clothes. चलो मुझे एक बात बताओ कि ज्वेलरी डिजाइन, what are you by profession? Are you into fashion industry या ये ज्वेलरी जो है ये शौकियाना हुआ? बिल्कुल शौकियाना है. I've been designing jewelry for about a couple of years. और बस शौक मुझे हमेशा से डिज़ाइन करने का था. ज्वेलरी basically it's my passion, and what I do is I design jewelry and I get it made here in Karachi, and then I supply my jewelry to some leading stores in London and Manchester. हाँ, मैंने वैसे आपकी सारी रेंज देखी है and I loved it. And I think you're not wearing that bracelet that I really loved it that day. That was a Turkish one, Turkish bracelet. It was amazing actually. एक इनका, sir, I have to introduce you the additional DIG of Sindh over here. He's from Traffic Police. Okay. And this is Saira who looks after all the jewelry and stuff. तो मैं ये कहती कि सर हमने इनके पास एक देखा, इनका एग्जीबिशन लगा हुआ था, इतना खूबसूरत ब्रेसलेट पूरा टर्किश स्टाइल का बना हुआ. Very nice. It was a Turkish bracelet actually. It was, yeah. और बाकी जैसे you know I have to mention this as well that I am wearing one of them right now. Which one is this? What do you call this? Is Indian cut or what? This is we manufactured it here. It's pure silver, 925 sterling silver with zircon. And as you can see, zircon भी जो है ये सब diamond cut पे बना हुआ है. So it does give you that beautiful diamond look. हाँ, it doesn't look fake और या zircon जैसी look बिल्कुल भी नहीं है. हमारे जितना भी zircon आपको मिलेगा, it's also beautifully made. बिल्कुल diamond cut के ऊपर है, because the reason people are going for silver jewelry these days is क्योंकि gold prices इतने ऊपर चले गए हैं, affordability कम हो गई है, and then security reasons. So accessories are very essential part of. Yes, you know. That actually pushed me into this business क्योंकि silver jewelry का इतना अब scope हो गया है. People are very interested in silver jewelry because you can do a lot with silver jewelry. आप उसको diamond cut दे सकते हैं, and then you know without spending that kind of money you can you know change your jewelry all the time, wear a beautiful new piece every day if you want. Yeah. Things are changing. आपका ख्याल है कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं वक्त के साथ साथ, कि जैसे गोल्ड की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है तो लोग जो है वो अब as far as jewelry is concerned मैं बिल्कुल नाबलद हूँ इन चीज़ों में. बिल्कुल हो रही होंगी लेकिन इल्म नहीं, मेरी वाइफ को जरूर इल्म होगा. लेकिन सर आप देखते तो होंगे, आपको अंदाजा होता होगा. आपकी वाइफ ने आके आपसे कहती है कभी मुझे ये नहीं खरीदना, मुझे वो लेना, ये महंगा हो गया. इस सिलसिले में उनकी कोई ऐसा खास वो नहीं है. Well, that's sad. होना चाहिए. I think jewelry item is a very important accessory of human nature भी समझ ले, you know, and female खास करके वो तो बहुत उसमें. Absolutely. Yeah. And besides that, even this is very nice. Yeah. Now what is this? That again is silver, 925 sterling, and the best thing, well, जो हमारी ज्वेलरी में एक चीज़ होती है, it's all hallmark. अगर आप उसको देखें, पीछे उसका बेस देखें तो उस पर आपको दिखेगा 925 it says, so you know that what you're investing in, that it's pure silver, and the stones we use are real anyway. We use precious and semi-precious stones, so this is all real ruby and silver. Yes. Is it really? Yes. Very nice, very nice. So that's the idea, you know. So that's why it gives the piece a beautiful, rich look, because we do use good material. Excellent, excellent. I really like it. It's very. तो और कौन से stones use करती हो? I mean, this right now. Mostly emeralds and sapphires and. जी, हाँ, mostly I use ruby, sapphire, amethyst, emerald. Zircon बहुत होता है, जैसे ये आपने पहना है, ये diamond cut पे. What I'm wearing is zircon as well. This is very nice what you're wearing as well. So इसमें आपके rings भी है ना? If I'm not mistaken. Rings भी हैं जी. I give this. It's called micro setting. This is amazing. Yes. This is amazing ring. And even the earrings that you had the other, they were really nice. My kids were so completely gone. My बेटियाँ गई थी इनकी exhibition में, they were not getting out of the exhibition. हमने एक earring देखी. We love it. We want to try it.
वेरी नाइस, आई मस्ट से, अमेजिंग जॉब, अमेजिंग। यहाँ पे पाकिस्तान में होता है कि ना लोग बहुत सारे जैसे कपड़ों के बिजनेस में भी आ जाते हैं, ज्वेलरी के भी आ जाते हैं, मगर समटाइम दे एंड अप मेकिंग चीप थिंग्स, you know, the cheap designs. Here in Pakistan people actually don't have the taste, so very few people can actually design that well, you know, जो हर wardrobe के साथ जा सकता हो, and it gives a nice Italian look. First thing, I'm extremely quality conscious. No matter what, I will never compromise on quality. Like I said, all my 99% of my pieces are hallmark, so you know what you're buying. Stones, मतलब we're very selective what we are making. और जैसे उस पर लैकर है, everything is rhodium plated, काला नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। एंड नॉट जस्ट यहाँ की बनी हुई चीज़ें, what I like to do is कि और जगहों पे भी इतनी खूबसूरत ज्वेलरी मिलती है, like you're talking about the Turkish bracelet that I was wearing the other day. हाँ, तो अब मैं पिक करती हूँ जैसे और जगह की भी चीज़ें हैं, बैंकॉक से कुछ लिया था, टर्की से, इंडिया से। That's why I have a wide range of jewelry pieces, and that appeals to different clients, different customers. That's right. So that really helps. Yeah. Turkish handpiece was excellent, I must say that. Very nice, बहुत खूबसूरत था। Apart from that, I have to say that कि डॉक्टर साहब जो है ना वो शायरी भी करते हैं, which I forgot to mention. वैसे आपका ये शौक शायरी की तरफ कैसे आया? नहीं, ये शौक तो बस खुद ही एक माहौल होता है, कुछ आपकी अपनी इंक्लिनिटी होती है कि किस तरफ आपका रुझान है, तो इसी तरह से फिर आपने शायरी, तो आपने इसको बकायदा इसके ऊपर आपने काम किया? जी, महज शौक था, फिर ये आपके डेवलप हो जाता है, खून में चला जाता है, तो फिर अभी आप उसके लिए क्या करते हैं? I mean, do you... मैं जब भी शेर कोई आता है जहन में उसको लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। आपने कोई किताब सोचा लिखने का? हाँ, नहीं बिल्कुल, अब तो तकरीबन इतना हो गया है कि मैं किताब मेरी कंपाइल हो जाए, मेरे दोस्त कर भी रहे हैं उसको। एक्सीलेंट। तो ऐसे नहीं होता कि आप पुलिस में भी हैं और डॉक्टर भी हैं और साथ में आपके पास एक शायरी का भी है, तो ये हाँ, तो बस यही सब, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं। That's right. That's excellent actually. सभी लोग किसी ना किसी शौक में, कुछ को मूवीज देखने का शौक है, मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, तो वो सभी इसी तरह की जिंदगी गुजारते हैं, मेरा भी कुछ इसी तरह का है। That's actually very nice, exploring yourself. आपके अंदर इतने टैलेंट होता है कि जिसको आप एक्सप्लोर कर सके। अच्छा, tell me Sara, one thing, you are based in Pakistan or you are based abroad? I live in Manchester, लेकिन यहाँ पे I make very frequent trips here because of my work, but आना जाना मेरा रहता है, but I have been in Manchester for about 17 years now. 17 years. तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सारी पाकिस्तान में, and you have an exhibition in Manchester and here. रिस्पांस कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, like I said, I've been doing this for past couple of years, और वहाँ पे लंदन और मैनचेस्टर में तो बर्मिंघम इन जगहों पे तो बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ज्वेलरी, and I just thought this time I should explore market here in Karachi, and mashallah say I'm getting really good response. People are appreciating my design, quality and everything. That's so excellent. I'm enjoying it. So you are doing jewelry in which you are doing earrings, you are doing rings? Everything, yeah, from earrings to pendants and complete sets, bracelets, rings. Excellent. Yeah. Using crushed diamonds even Jhumar and all that stuff. Really? That's what I was about to ask. कि और इसमें क्या चीजें हैं जो हो रही हैं? क्योंकि as I said earlier, उसमें जो गोल्ड की प्राइसेस की वजह से अब लोग शादियों में भी थोड़ा सा एक होते होंगे, जाहिर बात है, प्रॉब्लम के आप इतना आपको करना है, फिर झूमर, टीका, ये सारी चीज़ें, तो हमने ये सोचा कि उसको भी सिल्वर में करें विद रियल स्टोन्स, तो it gives beautiful real look, लेकिन without spending so much. मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि गर्मियों का सीज़न आ गया है और एक्नी और पिंपल जो है ना, वो चाहे ख़वातीन हो, मर्द हजरात हों, लड़कियां हों, उन सबको ये बहुत कॉजेस होती है एक्नी की और पिंपल्स की। अब मैंने सवाल ये किया था कि क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से एक्नी और पिंपल होते हैं, और लाइव कॉल्स हैं, जवाब देने वाले को हमारी तरफ से बायोडर्मा का 100 SPF सनस्क्रीन मिलेगा, तो प्लीज़ देर ना कीजिए, जल्दी से फ़ोन उठाइए और इसका जवाब दीजिए। हाँ जी। समर सीजन राइट नाउ, और इतनी गर्मी हो गई है और लोगों को इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाता है स्किन का पाकिस्तान में। इट्स डिफरेंस इन UK एंड डिफरेंस इन पाकिस्तान। जब आप यहाँ आती होंगी आपको नहीं फील होता कि आपकी स्किन चेंजेस ला रही है? नहीं, बिल्कुल, बालों में भी लगता है, स्किन में भी कभी ऑयली हो जाती है, तो it keeps changing actually। और यहाँ पर पाकिस्तान में तो सनलाइट का जितना एक्सपोजर होगा, बहुत सनलाइट का एक्सपोजर, गर्मी इतनी हो गई है, तो everybody is having some or the other problems there. So what I have introduced is a sunscreen which is SPF 100, which I'm giving to my all viewers here. Yes, it's an international brand. फेयर कॉम्प्लेक्शन को तो ये ज्यादा
नहीं सर देखिए ना, फेयर कॉम्प्लेक्शन के अंदर तो वैसे भी मेलानोसाइट्स होते ही कम है, तो उनको ज्यादा होते ही नहीं है। जो हमारी स्किन है उनको तो सबसे ज्यादा सनस्क्रीन की जरूरत है मैक्सिमम। फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले आगे चलकर सिर्फ एज स्पॉट या फ्रैकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मगर पिगमेंटेशन में इतनी जल्दी नहीं आते। जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में एवरी थर्ड वुमन हैज पिगमेंटेशन ऑन। बिल्कुल इस बीमारी बन गई है। अब तो मैं लोगों को यही बोलने लगी कि ये बीमारी है, टेक दिस एज अ डिजीज, क्योंकि इसको क्योर करते ही रहो। लाइक डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, आप उसकी दवाइयाँ लेते ही रहते हो। लोग आते हैं फिनिकी पैनिक अटैक के अंदर बोलेंगे हमें बस अभी जल्दी से ठीक कर दो, नहीं ऐसे होता, यू नो। सो सनस्क्रीन इज वन थिंग व्हिच इज मैंडेटरी, चाहे वो यंग एज से स्टार्ट हो रही हो। मैं आई थिंक इट्स बेस्ट टू स्टार्ट, इट्स बेटर टू स्टार्ट एट द एज ऑफ 8-9, बिकॉज बच्चों की स्किन सबसे ज्यादा ऐसे स्टेज में होती है जो सबसे ज्यादा सन लेती है। People don't know here in Pakistan these things कि आपके बच्चों की स्किन को कितना प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसका ये एक रीजन नहीं है कि आपको टैन नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि यहाँ पे तो दे आर मोर फेयर कॉम्प्लेक्शन। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा भी फॉर यू नो फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड ऑल, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन के आप इम्पोर्टेंट वेरी, एंड स्पेशली नाउ के मीडिया इतना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है कि एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड, एस्थेटिक ब्यूटी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कॉम्प्लेक्शन के साथ टेक्सचर भी बिल्कुल exactly all these things are actually making a lot of difference. With all that we have a jewelry designer here and we have the most important ADIG here, जो कि सब चीजें आपस में आके लिंक होती हैं सर, you know this. If you see everything gets linked. You are dressed up, you're wearing jewelry. क्या है ये बताइए? नहीं, I tell you what, आपने jewelry पहनी है, रुक जाएगा jewelry देखने के। कैप तो वहीं आते हैं। You know, I mean if you are so dressed up, वहाँ पे आपको चोरी मिलती जो ले जाते हैं। ट्रैफिक और शायरी दोनों से ताल्लुक है ज्वेलरी का। शायरी से तो चलिए ज्वेलरी और ब्यूटी का ताल्लुक समझ में आता है, मगर ट्रैफिक से भी ना, तैयार होकर ट्रैफिक में तो जाते हो, लेट हो जाते तो फिर ट्रैफिक को ही बुरा भला बोलते हैं। मुझसे तीनों चीजें रेलेवेंट है, ब्यूटी भी, ज्वेलरी भी और ट्रैफिक। नहीं, मेरा कहने का है तैयार होकर हम गाड़ी में बैठ के जब कहीं देर हो जाती है पहुँचने में तो किसको ब्लेम देते हैं? ट्रैफिक को। So what difference do you find in Pakistan's traffic and UK's traffic? ओह मैसिव डिफरेंस, मतलब ट्रैफिक तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, रूल्स और जो उनका सारा है, मतलब ड्राइविंग हेयर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आप मतलब देयर इज़ नो स्पीड लिमिट, पीपल डोंट फॉलो रूल्स, मतलब राइट आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं, राउंड अबाउट पे हैं, ट्रैफिक लाइट पे जहाँ भी हैं, यू नो। आप इधर तो पाकिस्तान में सर नहीं, मैं उसको थोड़ा सा अर्ज कर दूं। बात ये है कि हमारे ही जब लोग बाहर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाते हैं और हर जगह तारीफ होती है उनकी कि जी पाकिस्तानी हैं और बहुत लॉ को फॉलो कर रहे हैं। वाई नॉट इन योर ओन कंट्री? आप अपनी कंट्री को, अपने शहर को ओन करें, इससे मोहब्बत करें। ये कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में कि हर आदमी पे, हर कम्यूटर पे जो रोड को यूज़ कर रहा है, एक सिपाही आप उसके ऊपर डिप्यूट कर दें, कहीं नहीं होता। आपको खुद फॉलो करने होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, और स्पेशली तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन यूँ तो आप ही के फलाह के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन तो वो तो है ही इसलिए कि आप स्मूथली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, दूसरा भी पहुंच जाए, दूसरे के भी हुकूक जो हैं वो यूज़र ना हो रहे हों, आपके भी ना हो रहे हों रोड के ऊपर। तो आप खुद फॉलो करें। आप खुद देखेंगे कि सिग्नल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में सिग्नल जो है वो ब्लॉक नहीं हो रहा, वहाँ ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा, स्मूथली लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली जब हम रोकते हैं लोगों को तो कहते हैं कि जी एक गाड़ी तो यही रूल जो है वॉयलेट करती हुई निकली, उसको क्यों नहीं रोका आपने? ऐसा नहीं होता, उसको भी रोका जाता है। लेकिन बात यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, बजाय शर्मिंदगी महसूस करने के। ये जवाब आप देंगे तो इससे पता चलेगा कि आपका सिविक सेंस क्या है और आप किस तरह सोचते हैं। पॉजिटिवली सोचें। आपको रोका है, आपने गलती की है, आप उसका चालान और जो भी यहाँ पे लोग नहीं मानते, गलती करके बात मानते भी हैं, बिल्कुल मानते हैं जहाँ अवेयरनेस है। सर मोस्टली देखना लोग तो खुद गाड़ी चला नहीं रहे होते, उनके ड्राइवर्स गाड़ी चला रहे होते हैं। नहीं, यहाँ तो ज्यादातर लोग बोला जाता है कि अभी अब हम आज तैयार होते हुए लेट निकले हैं तो हमने 9 बजे पूरे पहुंचना है और 9 बजे में से 5 मिनट है हवा। देखिए कोई भी ड्राइवर है, चाहे वो व्हीकल का ओनर खुद ड्राइव कर रहा हो, चाहे उसका ड्राइवर, लेकिन जो भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी को वो जिम्मेदार है, और फिर उसको रोक के उसको करार वाकई जो पनिशमेंट है वो दी जाए, और वो दी जाती है। और हम उसको ये एक्सोनरेट नहीं करती बात कि आप खुद नहीं ड्राइव कर रहे हैं। That's right, that's also right, okay. Anyways, you tell me, आपका नियर बाय कोई एग्जीबिशन होने वाला है सारा? अभी एक एग्जीबिशन तो अभी ख़त्म हुआ है, होपफुली देखें इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एक और होगा, फिर वन ड्यूरिंग रमज़ान, ईद से पहले। Excellent. So, yeah. So is there anything that you want to tell my viewers about your jewelry? Actually, I'm completely short of time. तो आप कुछ बताना चाहे अपने, and you know, so that viewers can actually get educated कि how your jewelry is different from other people's jewelry.
Well, all I can say is I put my heart and soul into my jewelry, and I love each and every piece I have, and I'm sure वो आके देखें लोग, अगर you have seen my jewelry, Of course I have. and बहुत ही मैंने प्यार से एक एक पीस जो है उसको बनाया है, या अगर जो बना हुआ लिया है तो उसको सेलेक्ट किया है, and I think quite fussy when it comes to quality and style and design. Well, when I see you yourself, I mean, आपने अपने आप को इतना अच्छा रखा हुआ है, I can very well imagine that आपने ज्वेलरी भी बहुत अच्छी बनाई है. वैसे I have to tell people, she's such a gorgeous looking lady, and so she has done such a beautiful job on her jewelry. And sir, I'm again both of you short of time, and thank you so much for being a part of my show today. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा. Till then, Dr. Tania signs off. खुदा हाफिज.